अब दोस्तों स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं जो बहुत दूर मारते हैं, बड़े घातक वेपन्स होते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, कुछ साल पहले तक प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत छोटा मोटा कुछ कर दिया तो कर दिया, नहीं हम प्राइवेट ट्रस्ट ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था कि प्राइवेट इंडस्ट्री को कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आपको बड़ा शौक लगेगा। मैंने तो इंटरव्यू करा है। तो मैं गया पुणे, और पुणे में जो भारत फोर्ज है, उनके जो चेयरमैन है भारत फोर्ज के, मैंने उनके बाबा साहब कल्याणी है उनका नाम, इज अ वेरी सीनियर पर्सन, रिस्पेक्टेड पर्सन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं उनके ऑफिस गया, बड़ा शानदार उनकी फैक्ट्री ऑफिस, और वहां पे उनका इंटरव्यू। उन्होंने एक बात बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि गौरव, हम लोग बना तो रहे थे, वी वर मेकिंग गन्स, हम लोग गन बना रहे थे, आर्टिलरी के लिए गन बना रहे थे, और बढ़िया गन्स भी थी, और सब लोगों ने देखा, बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज बनाई है। लेकिन इंडिया में उस गन को टेस्ट करने की परमिशन ही नहीं थी डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि आपने भारत में एक शानदार गन बनाई है, लेकिन आप भारत में इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो उसने बोला, सर मैं तो आपके कहने पे मैंने गन बना दी, टेस्टिंग कहां करूंगा, क्योंकि बिना टेस्टिंग के आप खरीदोगे नहीं। तो बोला नहीं साहब, ये हम कर नहीं सकते। तो फिर ये लोग क्या करते थे, भारत फोर्ज वाले, ये उठा के ले जाते थे गन अमेरिका, ये अमेरिका ले जाते थे, और ये अमेरिका में जाके इसकी फायरिंग करते थे। ये इंटरव्यू का 2 मिनट का छोटा सा क्लिप देखिए। The second problem we had was, we said, okay, हमको टेस्ट फायर करने दीजिए, हम प्रूव करेंगे हमारी गन कैसी चलती है, how it fires. So till 2017, nobody allowed us to go on the range and fire. So how did you test your weapons? So we sent our gun to the United States. Wow. To their firing range at the Rock Island Arsenal. Because I knew personally some people there. I knew some generals. We had to take approval of DOD, approval of DARPA at that time. They had to take approval to get our gun. We had to air freight the gun. So bring it there and put it on their test stand. When you put a gun on the test stand, you don't put the whole gun. You put the ordnance and that part of it, like they do it here too. And of course, you got to then strain gauge it and do all that stuff to measure all the forces and all that. And you take a video. So they did all that in 45 days. And they sent a video shoot. And they said, your gun fires extremely well. And there was a conference, I forget the date, but somewhere in 2017, 2018. Tri services. 16, in Delhi, Army conference. So this happened before the conference, sorry. So it's been so long that I'm, no, absolutely. getting dates is a problem. And, Manohar Parrikar ji was there. All the army chief was there. All his entire armed forces, all the directorates, everybody was there. And I was one of the speakers. There were a couple of them from industry, some from DRDO, some from other places, but I was one of the speakers. And my speech started only with this, saying that हमने गन बनाई, अभी 4 साल हो गए, और हमको कोई उसको फायर करने नहीं देता है, उसको टेस्ट करने नहीं देता है. And I had to send my gun to the US to get it tested. And you showed the video. And I showed the video to the whole audience, including the late Honorable Defense Minister then. And they were stunned, simply stunned, that a company is capable of doing all this. I mean, sending a gun, I had to take an export permission from MOD to export a gun. ऐसे वैसे नहीं होता. You can't just take something and put it in a plane. You can't just courier it or something like that. No. So you have to take various permissions. Yeah. It's a weapon after all. Yeah. So I got all that. I followed the bureaucratic process that was required. And I got it done. And within 1 week, the defense minister changed the policy. He opened up all the test ranges for private sector. And that was the major inflection point for India's defense industry. Because you can make a product. अगर आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, और टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ आर्म फोर्सेस के पास है, एमओडी के पास है, डीआरडीओ के पास है, आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो यू वॉन्ट नो वेदर इट वर्क्स और नॉट.
So did you go back and tell them this is not jugaad? See for yourself. No. Then of course everything changed. जी. The Then- mindset changed. Mindset changed, and then they themselves came up with the DRDO program of ATAGs, and we were one of the guys whom they picked for being in that program along with Tatas. And you know the rest of the story. Absolutely. देख लिया आपने. फिर बने भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी. और मनोहर पारिकर जी ने जो पुराने जितने भी ये तरीके थे ना काम करने के, उन्होंने तोड़ दिया. उन्होंने बोला मैं परमिशन देता हूं, तुम जाओ. ही वॉज डिफेंस मिनिस्टर. जैसे उन्होंने परमिशन दी, उन्होंने आर्मी से पूछा कि आप तैयार हैं? आर्मी ने बोला क्यों नहीं तैयार? हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं. हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि ये चीज भारत में बनी है कि विदेश में बनी है. हमारा प्रॉब्लम क्वालिटी है. आप हमें क्वालिटी दे दो, भारत में बनी तो और अच्छा हमारे लिए. हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? वेलकम, मोस्ट वेलकम, आ जाओ. उन्होंने करा, उन्होंने प्रूव करा आज की तारीख में. और ये कहानी ज्यादातर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की थी. अब क्या हो रहा है कि यहां पे उल्टा डीआरडीओ जो है ये कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक वेपन्स के लिए आप सामने आइए. बड़े बड़े ब्रह्मोस है, जैसे ब्रह्मोस में ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज आर प्लेइंग अ बिग रोल. अब दोस्तों जैसे ये है ना अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पिनाका, इसमें आप ये देखिए ना साहब, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पिनाका, इसमें आप ब्रह्मोस भी जोड़ दो. ये सारी की सारी प्राइवेट पार्टनरशिप से बन रही है. इवन ब्रह्मोस जो इतना फेमस है, आइकॉनिक एक चीज बन गई है ब्रह्मोस हम लोगों के दिमाग में पूरी दुनिया में कि ब्रह्मोस है, उसमें भी प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं. तो ये काम कैसे करेगा पहले ये समझ लीजिए. डीआरडीओ डेवलप करेगा वेपन सिस्टम. ट्रायल्स एंड यूजर इवैल्यूएशन बाय डीआरडीओ एंड आर्म्ड फोर्सेस. इंडस्ट्री पार्टनर जो होगा ये डीआरडीओ के साथ काम करेगा. डीआरडीओ अप्रूव्ड सप्लायर्स फॉर प्रोडक्शन, वो मैन्युफैक्चर करेगा, फिर सप्लाई टू दी आर्म्ड फोर्सेस. राइट. तो डीआरडीओ एक नोडल बॉडी बन गई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, पूरा खाका बनाएगी, एवरीथिंग, एंड देन विल पार्टनर विद प्राइवेट पार्टीज टू बिल्ड इट फर्दर. ठीक है. तो अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट issued to identify and shortlist development cum production partners, scale and self-reliance, end-to-end role, minimum eligibility. अब minimum eligibility में बोला है कि 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए and capability to produce 50 to 100 units. तो ये होता है. टेंडर डॉक्यूमेंट जो भी होता है या अग्रीमेंट होता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और इतने मोटे मोटे होते हैं वो. तो उसमें फाइन प्रिंट होता है, तो फिर इट्स अ वेरी लेबोरियस प्रोसेस. मैं वो चाहता हूं कि एक दिन, एक ऐसा दिन आए जहां पे डीआरडीओ, राइट, डीआरडीओ शुड डू ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. डीआरडीओ करता है, आज भी वही करता है काम, लेकिन डीआरडीओ प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है. और मैं चाहता हूं कि जितने भी हथियार, ये मेरा एक ख्वाहिश है एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैं चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनीज बनाए सारे हथियार हमारे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कुछ हो. सरकार स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे. अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे सब प्राइवेट थे, सब प्राइवेट थे. सरकार ने कौन से बना दिए ड्रोन्स? प्राइवेट थे ना. कर दी ना धमा चौकड़ी. राइट. अब 114 आप राफेल खरीद रहे हैं. 114 राफेल में 20% फ्रांस में बनेंगे और बाकी 80% भारत में बनेंगे. कौन बनाएगा? एमका जो है भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट, कौन बना रहा है? प्राइवेट पार्टीज. हैल का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कोई रोल नहीं है, सारी की सारी प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं उसमें. अमेरिका में एक एक चीज, एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है दैट इज प्राइवेट यार. अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली न्यूपोर्ट न्यूज करके है, वो न्यूपोर्ट न्यूज, वहां पे जाके अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनते हैं. फिर आई मीन प्राइवेट कंपनीज में, लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है, बोइंग प्राइवेट कंपनी है. हर जगह यही होता है और यही होना भी चाहिए भारत में कि गवर्नमेंट को धीरे 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 ना गिव इट टू प्राइवेट कंपनीज टू मैनेज, कंट्रोल एवरीथिंग बट गिव इट टू प्राइवेट कंपनीज. आप उनको फंड करिए, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड करिए, आप प्रोटोटाइप फंड करिए, आपको जो करना करिए. तब आपके पास स्केल आएगा, तब आपके पास स्केल आएगा. किसी दिन मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं इस मामले में क्यों इतना जज्बाती हूं, क्यों इतना इमोशनल हो जाता हूं कि प्राइवेट पार्टीज को करना चाहिए. किस दिन बताऊंगा आपको कहानी. लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपने एंड पे रिसर्च करना, दोस्तों पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था ना, उसके बाद भारत ने लॉन्च करा था ऑपरेशन पराक्रम. ऑपरेशन पराक्रम वॉर नहीं था, ऑपरेशन पराक्रम मोबिलाइजेशन था. देयर वाज नो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान. मैं ये चाहता हूं कि आप लोग गूगल पे जाएं और ये देखें कि ऑपरेशन पराक्रम में हमने अपने कितने भाई खोए. एक मोबिलाइजेशन में जो कि वॉर नहीं था, एक मोबिलाइजेशन में हमने अपने कितने भाई खोए, जरा ये देख लीजिए. और क्यों खोए ये भी देख लीजिए. कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो गवर्नमेंट को इनकरेज नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि प्राइवेट
पार्टीज आ जाएं वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल चाहता हूं, यही चाहता हूं, खुल के बोल रहा हूं, 100 बार बोलूंगा। प्राइवेट प्लेयर शुड मैन्युफैक्चर। लोगों को पता नहीं है, लोग फालतू की बातें करते हैं। जब सरकार ने पहली बार 36 राफेल खरीदे थे ना फ्रांस से, आपने क्यों कर दिया, ये गलत कर दिया, हेल लेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज नॉट बीन एबल टू मेक तेजस। ये सच है, कड़वा लग रहा है ना आपको, सच है ये। आपको क्यों लगता है कि सरकार ने बोला कि 5th जनरेशन फाइटर प्राइवेट पार्टीज बनाएंगी? बेवकूफ बैठे हैं वहां पे। ओ भाई, दे नो किसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है इन इट्स करंट फॉर्म। आज का जो फॉर्म है HAL का, उसमें HAL कभी ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा सकती। इट इज इम्पॉसिबल। और बहुत टैलेंटेड लोग हैं HAL के अंदर, द वेरी टैलेंटेड पीपल इनसाइड HAL, बट दे कैनॉट, वो नहीं कर सकते कंपीट, नहीं है कैपेसिटी कैपेबिलिटी। आप जाना ऑपरेशन पराक्रम में कितने हमने जाने खोई, ऑपरेशन पराक्रम में जबकि लड़ाई नहीं थी, कितनी जाने हमने पराक्रम में खोई। मैं चाहता हूं आप जरा पता लगाओ क्यों खोई, ये भी पता लगाओ आप। और ऑपरेशन पराक्रम के पहले हुआ था क्या? कारगिल की लड़ाई, जो कि युद्ध था, प्रॉपर युद्ध था, प्रॉपर दो फोर्सेस के बीच में, पाकिस्तान फौज और इंडियन आर्मी के बीच में भिड़ंत हुई थी सॉलिड कारगिल में हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए? और ऑपरेशन पराक्रम जो युद्ध नहीं था, उसमें हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए? आप लोग जाके खुद देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूं, क्यों जज्बाती हो रहा हूं, और क्यों इस चीज पे मैं अक्सर बात करता हूं। यह दिखाता है दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। जैसे हमने देखा ना कि हम पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में चीजें डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं साहब, आप मेक इन इंडिया करो, 60% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, 20% बाहर बनेगा, 80% इंडिया। ये सारी की सारी चीजें, इससे फर्क क्या पड़ा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मेरी लास्ट स्लाइड है आज के प्रेजेंटेशन की। ये देखिए साहब, 56x ग्रोथ इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। डिफेंस एक्सपोर्ट्स से आप बोलेंगे साहब इसका क्या लेना देना, आप तो कह रहे हैं मेक इन इंडिया। भाई, जब आप प्राइवेट पार्टी से पार्टनर करेंगे और वो बनाएंगे, है ना, जब आप प्राइवेट पार्टी से पार्टनर करेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। जब क्वालिटी बेहतर होगी, पूरी दुनिया पूछेगी कि यार ठीक है, हम खरीदने की सोच रहे थे, जरा अपना प्लेटफॉर्म जरा बताइए कैसे काम करता है। ये होता है, फिर आप पुश करते हैं, फिर आपका नजरिया वैसा बन जाता है। दोस्तों ये देखिए, हमारा 2013-2014 में 686 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट था, और वही चीज 10 साल के अंदर हमारी हो गई 38,424। 686 करोड़ जो थी, वो हो गई 38,424 करोड़। सोचो आप, 56 गुना बढ़ गया, 56 गुना। 80+ कंट्रीज रीच्ड। जो एक्सपोर्ट पिछले 12 साल में बढ़ा है, वो 5,500% बढ़ा है, 5,500%, 80 देश। अब कमाल की बात यह है जो मैं बताने वाला हूं आपको, यह कमाल है। यहां पे जो हो रहा है, कमाल यह हो रहा है कि आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन है 45.16%, 45.16%। ये प्राइवेट है। और जो PSUs हैं, डिफेंस PSUs, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनका है 54.84%। यानी कि ये 17,353 करोड़ थे, और ये थे 21,071 करोड़। सेम 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये फिगर है। मैं ये चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर का हो जाए 95%। मैं ये चाहता हूं फ्लिप हो जाए पूरा मामला, और ऐसा फ्लिप हो कि ऑल दीज कंपनीज ना, और अनलेस ऑफ कोर्स कोई आप न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, वो अलग चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो अलग चीज है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स एब्सोल्युटली, आपका महिंद्रा है, आपका टाटा है, आपका कितने और लोग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जिनके पास पैसा है। टेल देम, ब्रह्मोस का अगला वर्जन तुम बना रहे हो, टेल देम। जो वो कंपनीज हैं जिसके बारे में हमने कल परसों बात की थी, जो ड्रोन्स बना रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी है जिसने ड्रोन बनाए हैं जो कि 1500-2000 किलोमीटर तक मारते हैं। दिव्यास्त्र 2 की बात कर रहा हूं, हमने कवर किया था ना। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल सटीक निशाना लगाएंगे कि साहब हमें इंडिजिनाइजेशन करना है, और ये हमारा एम है ना, बिल्कुल, यू विल अचीव ऑल दीज मैजिक फिगर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि यार ये सब देखने को मिलेगा। एक कमाल है एकदम, बिल्कुल। गवर्नमेंट का टारगेट है 3 लाख करोड़ का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन का, और 50,000 करोड़ सरकार कहती है कि साहब हम 50,000 करोड़ तक रीच करेंगे 2029, यानी कि 6 साल।
आज की तारीख में 38,424 करोड़ है, ये रीच कर जाएगा 50,000 करोड़ अगले 3 सालों में। ये इनकी स्टोरी है। 112% इंक्रीज इन डिफेंस R&D एलोकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करा है, ठीक है, जो कि 13,716 करोड़ हुआ करता था 14-15 में। वो आज की तारीख यानी कि 26-27 में ये 29,100.25 करोड़ हो चुका है। 25% R&D बजट ओपन टू इकोसिस्टम, ओपन टू इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। अब स्टार्टअप्स को आप विश्वास नहीं करोगे कितने सारे ड्रोन्स हैं, कितनी सारी मिसाइल्स हैं। सरकार जाती है, फौज जाती है, IIT दिल्ली पहुंच गई या किसी और IIT पहुंच गई, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है, उनसे कहते हैं कि यार देखो हमें ना एक ऐसा ड्रोन चाहिए। वो कहते हैं ठीक है सर, विल फंड इट, डन। IIT के जो लोग हैं, हम तो दे आर यंग किड्स बट दे आर द ब्राइटेस्ट, ये बात सच है, माननी पड़ेगी। दे आर मेकिंग द लेटेस्ट कटिंग एज वेपन्स फॉर इंडिया। कटिंग एज वेपन्स बना रहे हैं वो लोग। 24 DRDO labs accessible via DTP portal, paid access to specialized testing infrastructure for indigenous development। तो आपके पास एक ऐसा हो गया है मामला कि आप एक स्टार्टअप हैं, आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, आप DRDO के जो लैब्स हैं, जस्ट इमेजिन, वेल फंडेड स्टेट ऑफ द आर्ट DRDO labs, you can actually access DRDO labs for your work। ये कमाल हो गया दोस्तों।